यहाँ पे कहता है चेलों को, here Jesus Christ is telling his disciples, कि खेत के स्वामी से विनती करना, request, pray earnestly to the Lord of the harvest. क्या करना है? खेतों के मालिक को विनती क्या करना है? What is he asking to pray earnestly to the Lord of the harvest? कि अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। To send out laborers to cut the harvest. क्या करना है? What to do? हमको विनती करना है। We need to pray earnestly. हमको प्रार्थना नहीं करना है। We need not do prayers. हमको यहाँ पे धन्यवाद नहीं देना है, We need not thank the Lord. लेकिन हमको यहाँ पे विनती करना है। We need to request earnestly. किसके लिए? For what we need to request ज़्यादा मजदूरों earnestly? के लिए। For more laborers. अभी इसके आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। I would like to tell you furthermore. ध्यान से इस बात को सुनना। Listen carefully. कुछ साल पहले, Few years ago, ये बात है मार्टिन लूथर के किंग के जीवन के बारे में। this is about King Martin Luther. मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। You must be knowing about Martin King Luther King. ये जो मार्टिन लूथर किंग जो है, ये एक क्रांतिकारी था। This King Martin Luther was a revolutionist. और इसने मसीह जीवन में या क्रिश्चियन सोसाइटी में इसने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। He brought a revolution in the life of Christians. ये क्रांति कैसे हो गई? How did this revolution take place? तो अभी ये क्रांति कैसे आई मैं आप लोगों को बताऊंगा। I will tell you how this revolution took place. ये जो वचन जो है, जो जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, The word which we are reading today, ये जो वचन ये मार्टिन लूथर किंग के सामने था। this word was in front of Martin Luther. और मार्टिन लूथर किंग ने देखा कि ये जो मसीह समाज जो है वो गलत दिशा पे जा रहा है। King Martin Luther saw that the Christians or this society was going in a wrong direction. और जब उसने देखा कि ये कहाँ तो गलत दिशा से जा रहा है, तो उसने इस वचन को देखा, वो अपने घुटने पर आया और उसने प्रार्थना शुरू की। When he saw Christian community going in a wrong direction, he went on his knees. Looking at this verse, he started praying earnestly. उसने प्रार्थना करना शुरू की। He started praying earnestly. उसने प्रार्थना करना शुरू की। He started praying earnestly. दिन निकल रहे थे, ये प्रार्थना कर रहा था। Days were passing and he was praying earnestly. प्रार्थना कर रहा था कि मजदूर मिल जाए। He was praying for laborers. और एक दिन अचानक रीति से प्रभु ने उसको एक दृष्टांत दिया। And one fine day, God gave him a vision. और उस दृष्टांत में उसने क्या देखा? What did he see in the vision? कि वहां पे एक बहुत बड़ी खेती है। There's a very big field. और वो जो खेती जो है वो पूरी रीति से पक गई है। And the harvest is full in the fields. और ये जो इतनी बड़ी जो खेती जो है वो जो पकी हुई है, उस खेती में कटनी करने के लिए एक आदमी उस खेत में घुसा हुआ है। And in that field which is full of harvest, one man enters into the harvest. और वो वहां पे कटनी कर रहा है। And he is cutting down or harvesting the field. बहुत बड़ी खेती है। A very big field. और एक आदमी वहां पे कटनी कर रहा है। And only one man to harvest in the field. और फिर प्रभु ने उसको कहा। And then the Lord told him, मार्टिन, तुझे क्या लगता है कि ये आदमी ये जो कटनी जो है वो कितने दिन में करेगा? Then the Lord asked Martin, how many days will this man take to complete this harvest of this field? मार्टिन लूथर किंग वहां पे वो चुप हो गए। Martin Luther was quiet. वो सोचने लगे कि प्रभु यहाँ पे क्या कहना चाहता है। He started thinking what the Lord wants to tell here. तो उसने प्रभु को कहा कि प्रभु तुझे क्या कहना है? Then he asked the Lord, Lord, what do you want to tell? उसने उसको कहा कि अभी प्रार्थना करना बंद कर दे। Then the Lord told him, stop praying. प्रार्थना करना बंद कर दे। Stop praying. उस मजदूर को
हेल्प करने के लिए तू अब उस फील्ड में अभी तू घुस जा। To help that laborer, you have to enter the field. क्योंकि हर एक चीज का एक समय है। Because everything has a time. अभी तेरा प्रार्थना करने का समय खत्म हो गया है, And the time to pray is over. अभी कटनी का समय आ गया है। It is the time of harvest. यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तुम विनती करो। Here Jesus Christ tells you pray earnestly. आज बहुत से लोग हैं कि इसी वचन को ऐसे ही लेके सालों साल ऐसे ही चल रहे हैं। Today there are many who are holding to this verse and continuing in praying. और जैसे हिंदी में एक कहावत है, उस कहावत के जैसे लोग चल रहे हैं। As there is a proverb in Hindi, people are walking according to the proverb. ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होगा। It cannot be translated into English. ये जो कहावत है, तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं। The translation is very difficult. The proverb is, you go for the fight, you fight, and we will take care of your clothes. तो ये जो है आज यही सिचुएशन हो गया कि आप करो हम लोग है ना। And same situation today it is, okay, you do it, we are there. आज बहुत से लोग कहते हैं ना, ये पास्टरों का काम है, ये सुसमाचार सुनाने वालों का काम है। This is many people today say, it is not my job, it is the pastor of the job, it is the job of those who are preaching the gospel. आज बहुत से पास्टर मारे गए हैं। Today many pastors have been killed. इसकी जिम्मेदार कौन है? Who is responsible for खुद that? ही जिम्मेदार है क्या उसके लिए? Are only the pastors responsible for themselves? नहीं, उसकी जिम्मेदारी आज कलीसिया को भी लेनी पड़ेगी। But today I would say the responsibility is also of the church. और उस गैप को कलीसिया को भरना पड़ेगा। And the gap has to be filled in by the church. आज कलीसिया के लोगों को आज उठने की जरूरत है। The church has to get up today. चर्च को आज तैयार होने की जरूरत है। The church has to get ready today. क्योंकि आज क्या हो गया है? What happened today? हम आएंगे, हम प्रेरित के दूसरे अध्याय में। We will go to Acts chapter 2. और इस प्रेरित के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पहले अध्याय में भी हम देखते हैं वहां पे कि पहले अध्याय में क्या हो गया था कि यीशु मसीह के चेले वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। In chapter 1 of Acts we see the disciples were praying. यीशु मसीह ने उनको कहा था कि जब तक पिता वो आत्मा नहीं भेजता तब तक तुमको क्या करना है? तुमको प्रार्थना करना है। Jesus Christ had told them, till the Father doesn't send the Spirit, you have to pray. और ये लोग प्रार्थना करना शुरू किए। And the disciples started praying. इन्होंने क्या किया? What did they do? ये ऊपरी कमरे में गए। They went to the upper room. और उस कमरे में बैठ के And they sat in the upper room. और वहां पे 120 लोग बैठ के उस कमरे में 120 of them sat in the upper room. और उन्होंने एक मन से वहां पे प्रार्थना करना शुरू किया। They started praying in one accord. जो हम लूका 10 के दूसरे वचन के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। According to Luke 10 chapter 2nd verse, we say they started praying earnestly. वो किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? What were they praying for? वो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के मार्गदर्शन के लिए। They were praying for the Lord's guidance. क्योंकि खेती तो पक गई है अभी। Because the harvest is plentiful. अभी यहाँ पे हम देखेंगे इसका स्पिरिचुअल मीनिंग और स्पिरिचुअल रिजल्ट हम देखेंगे। We will see the spiritual meaning and the spiritual result of this. हम देखते कि यरूशलेम में वहां पे जितने भी इस पृथ्वी पे जितने भी यहूदी लोग थे जो अलग अलग देशों में थे, वो सारे लोग यरूशलेम में फसह के पर्व के लिए सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे। We see that the Jews, those who were scattered all around the world, had come there for the feast of Passover. एक्चुअली फसह के दिन से इस कटनी के दिन तक यहाँ पे 3 पर्व है।
From the day of Passover till the time of harvest, there are 3 different feasts. और ये तीनों महत्वपूर्ण ये पर्व है. These 3 feasts are very important feasts. अभी ये जितने में धर्मी यहूदी थे, Those who were righteous Jews, वो सारे धर्मी लोग वहां पे आ गए थे. those all had gathered there. मैं यहाँ पे मैं फिर से कहता हूँ, इसमें कोई भी साधारण व्यक्ति या साधारण जू वहां पे नहीं आया था. There no normal Jew was there, no simple Jew was not present there. लेकिन जो आए हुए वहां पे यहूदी थे वो सभी धर्मी थे. Who were present there were all religious ones. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो गया है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो धर्मी लोग थे, ये धर्मी लोग वहां पे क्या हो गए थे, वहां पे आके ये पर्व को मना रहे थे. We see that those who were religious people had come there and they were celebrating the feast. इन्होंने क्या किया, What did they do? तो वो यहाँ पे आके प्रार्थना करना शुरू किया. They came there and they started praying. कौन? चेले लोग. Who were praying? The disciples were praying there. फसल वहां पे ऑलरेडी आ गई है. The harvest was already plentiful. और फिर यहाँ पे ये जो चेले जो है, ये चेले वहां पे वो क्या कर रहे हैं, तो चेले वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे ये जो चेले जो है, ये चेले वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं. And what were the disciples doing there? They were praying. एक दिन हो गया, One day is over. 2 दिन हो गए, 2 days are over. 3 दिन हो गए. 3 days are over. ये इनकी प्रार्थना चल ही रही है. There the prayer is going on. और फिर 10वां दिन वहां पे आया. Then the 10th day was there. और जैसे ही ये 10वां दिन वहां पे आया, As the 10th day approached, वहां पे एक हलचल मच गई. there was a change, drastic change there. यहाँ पे क्या हो गया, What happened? यहाँ पे भूचाल आ गया. There was a earthquake. यहाँ पे आंधी आ गई. There was a storm. और यहाँ पे आग आ गई. And there was fire. यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, I want to tell you all one thing. फिर से हम इसके ऊपर ध्यान देंगे. Once again we'll pay attention to it. यीशु मसीह के चेले कितने थे? How many disciples did Jesus Christ have? 12 चेले थे. 12 disciples. यीशु मसीह को क्या करना था? What Jesus Christ wanted to do? यीशु मसीह को इज़राइल के कोने कोने में जाके उसका सुसमाचार सुनाना था. He wanted to go to each and every corner of Israel and tell the gospel. और उसके लिए ये 12 चेले बस नहीं थे. And for that, these 12 disciples were not enough. इसलिए उसने 70 से 72 एक्स्ट्रा लोगों की नियुक्ति की. So he appointed 70 to 72 extra. और ये जो लोग थे उनको लेके इस्राएल के कोने कोने में यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने सुसमाचार सुनाया. With this 70-72, he reached to the corners of Israel. अभी यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा है और स्वर्ग में जाते वक्त वो अपने चेलों को कह रहा है. And when Jesus Christ is about to ascend to heaven, he tells his disciples, वो अपने चेलों को एक बात कह रहा है. he is telling his disciples one thing. क्या कह रहा है? What is he saying? वो कहता है कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8वें वचन में, Acts 1st chapter verse 8. वो यहाँ पे कहता है, He tells here, जब पवित्र आत्मा आएगा when the Holy Spirit shall come upon you, तब तुम सामर्थ्य पाओगे you will receive power. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो. And you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. अभी हमारा जो काम जो है वो लिमिटेड नहीं है.
Now our work is not limited. यीशु मसीह ने ये जो काम जो है इसको बढ़ा दिया है। Jesus Christ has extended the work for us. ये अभी यहूदिया तक नहीं है, It's not up to Yehudia. यानी हमारे घर तक नहीं है। That means our own houses. हमको अभी हमारे घर के लोगों के बारे में नहीं सुनना है। Now we are not supposed to think about our family members. हमको सोचना है अभी हमारे घर के बाहर के लोगों के बारे में। We have to think about those people apart from our family members. जिन्होंने सुसमाचार सुना है उनको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है। Those who already know the gospel, there is no need to tell them the उनके gospel. सामने माथा पटकने की जरूरत नहीं है। There is no need to break the heads before those who know the gospel. हमको वहाँ पे हमारा अमूल्य जो वक्त जो है वहाँ पे गवाना जरूरी नहीं है। There is no need to waste our precious time on those who know the gospel. हमको हमारे घर के बाहर जाके हमारे आस पड़ोसियों के, हमारे आसपास के बाजू के लोगों को सुसमाचार हमको बताना है। It's time to go out of our house and go to our neighbors and the surrounding people and tell the gospel. केवल हमको हमारे गांव के लोगों को नहीं, Not only in our place. हमको हमारे गांव के बाहर भी जाना है। We need to go out of our place इसके बाहर also. भी हमको जाना है। We have to go outside also. हमारा जो लिमिटेशन है वो अनलिमिटेड है। Our limitations are unlimited. हमको पृथ्वी के छोर तक हमको सुसमाचार सुनाना है। We need to reach to the end of the earth. यीशु मसीह ने आपके हाथ में मोबाइल दिया है। Jesus Christ has given a mobile in your hands. इसके लिए नहीं दिया है कि हम हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ कैसे हो, खाना खाए क्या, खाना नहीं खाए क्या, आज क्या पकाया, इसके बारे में बात करने के लिए मोबाइल नहीं दिया है। He has not given us the mobile just to talk with our friends and relatives. What have you cooked and what have you ate and what are you doing? और न केवल हमको इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल नहीं दिया है। And not just for entertainment. ये मोबाइल इसके लिए दिया है कि ताकि हम हमारे घर में बैठ के हम पृथ्वी के छोर तक हम पहुंच सकते हैं। Sitting in our houses, God has given us the mobile to reach to the ends of the earth. अभी कैसे पहुंचना है ये मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है, And I don't think there is a need that I should tell you how to reach to the ends of the earth. क्योंकि हम लोग आजकल हम एक शब्द को बहुत बार सुनते हैं, यानी दिन में 100 बार हम उस शब्द को सुनते हैं। One word is there which we keep on hearing 100 times per day. और वो शब्द है वायरल। That is viral. आज क्या वायरल हो रहा है? What is being viral today? आप जाके देखो इंटरनेट पे वायरल क्या हो रहा है। Go on internet and you can watch what are the viral videos. जो जितने भी गलत काम है उतने सब वायरल हो रहे हैं। Whatever wrong things are, all the things are getting viral today. लेकिन आज जो वायरल होना चाहिए वो वायरल नहीं हो रहा है। And the things which has to be viral, they are not getting viral. और ये वायरल नहीं हो रहा है इसलिए वायरस आ गया है। They are not getting viral, so today there is a virus. अगर ये वायरस को हमको अगर निकालना है, If we want to remove the virus, हमको वायरल करना पड़ेगा। we have to make something viral. क्या हमको वायरल करना है? What are the things we need to make a viral? केवल और केवल यीशु मसीह का सुसमाचार। One and only one thing, that is the gospel of Jesus Christ. ये हमको करना ही है। We have to do it. और इसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। There is no other alternative for it. ये हमारा कर्तव्य है। It is our duty to do it और viral. ये करने के लिए And to do this as viral, हमको जरूरत है उसके पवित्र आत्मा की। and for that we need the Holy Spirit. और ये अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में अगर हमको चाहिए, And if we want the Holy Spirit, हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। we need to pray for the Holy Spirit. दिन और रात प्रार्थना करना है। Day and night we need to pray for the Holy Spirit. गए हफ्ता में मुझे 2 लोगों ने इसके बारे में पूछा है। Last week 2 people asked me about the Holy Spirit. उन्होंने मुझे कहा है कि हमको जरूरत है इस पवित्र आत्मा से भरने की। It is need for us to be filled with the Holy Spirit. और उसके लिए मैं अगले हफ्ते से मैं यही हफ्ते से मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। So from this week onwards I will be teaching on Holy Spirit. अभी समय आया है कि आपको आग को जलाने की। It's time to light the fire. और ये जो आग जो है
ये किसी गलत रीति की आग नहीं है, लेकिन ये सुसमाचार की आग है जो हमको जलाना है। We need to light the fire of gospel, not any other fire. उस पेंतेकोस्त के दिन उस आग को हम देखते हैं कि उस चेलों के ऊपर आ गया। We see on the day of Pentecost the fire came on the disciples. ये 120 लोगों के ऊपर ये आग आ गई The fire was on 120 people. और यही आग हम देखते कि आज दुनिया के कोने कोने में आज जा रही है। And the same fire is reaching to the ends of the earth today. क्या हम लोग आज उसका एक भाग बनने के लिए तैयार है क्या? Are we ready to be a part of the fire today? जब भी वो आग वहां पे आई, When the fire came on that day, ये लोग अन्य भाषा में वहां पे प्रार्थना करना शुरू किया those people started praying in unknown tongues. और ये वहां पे हम देखते कि ये जो लोग जैसे ही इन अन्य भाषा से प्रार्थना करना शुरू किया, As those people started praying in unknown tongues, ये इन्होंने भाषा बोलने के लिए प्रार्थना शुरू किया, as those people started speaking in unknown tongues, ये पवित्र आत्मा से भर गए और इन्होंने बोलना शुरू किया। they were filled with the Holy Spirit and they started speaking. इन्होंने बोलना शुरू किया, They started speaking. बोलते रहे They kept on speaking. और जैसे वो वहां पे वो बोलते रहे, यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। As they were speaking, people started gathering there. आप लोग पवित्र आत्मा से भर जाओ। Today it's need to be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। You should be filled with the Holy Spirit. लोग अपने आप आपके पास आ जाएंगे। Automatically people will come to you. आप लोगों को किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। There is no need for you to run after the अगर people. आपके अंदर अगर वो आग आ जाएगी, If the fire comes on you, वो आग ही उन लोगों को अपनी ओर खींचेगी। the fire itself will attract those people to you. वो आपके पास आ जाएंगे They will come to you. और फिर आपको क्या करना है? Then what you need to do? हम लोग जानते हैं कि हमको क्या करना है। Then we should know what we need to do. यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए As those people gathered there, और वहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पे पतरस उनके बीच में खड़ा हो गया। to make them understand, Peter stood amidst of them. वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पतरस जो था वो पतरस वहाँ पे खड़ा हो गया। Peter stood among them. मैं फिर से कहता हूँ कि वहाँ पे पतरस खड़ा हो गया। Once again I say that Peter stood there. यूहन्ना खड़ा नहीं हो गया, John did not stand. याकूब खड़ा नहीं हो गया, James did not stand. और आज कुछ लोगों ने जो बड़ा ऐसा जो एक डिनोमिनेशन बनाया हुआ है, उसका जो मेन जो व्यक्ति जो है वो भी खड़ा नहीं हो गया। The big denominations and the main person or key person of the denomination did not stand. मैं किसके बारे में कह रहा हूँ वो आप लोग समझ गए क्या? Did you understand about whom I am speaking? मैं ये कहने के लिए मैं शर्माऊंगा नहीं I won't be ashamed to say that. और डरूंगा भी नहीं। And I won't be scared also. वहां पे मरिया भी खड़ी नहीं होगी। And Mary also did not stand there. मैं ये बात को उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग आज उसको आगे खड़े कर रहे हैं। I want everyone to listen. I want this word to reach those people who have made her stand in midst of them. यहाँ पे यीशु मसीह ने पतरस को वहां पे खड़ा किया। We read that Jesus Christ has made Peter stand there. क्यों पतरस को ही खड़ा किया वहां पे? Why only Peter stood there? क्योंकि मत्ती 16 के अनुसार According to Matthew 16, कि उसने ये जो दृष्टांत जो है वो दृष्टांत या विजन जो है उसने पतरस को दिया था। because the vision was given to Peter. इसलिए पतरस ही वहां पे खड़ा हो गया। So only Peter stood there. यहाँ पे 120 लोग थे, लेकिन 120 लोगों में से केवल पतरस खड़ा हो गया और वहां पे 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए।
Here there were 120 people, but out of 120, only Peter stood, and we read that 3,000 came to the Lord. अगर आज आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, And today, if you believe in Jesus Christ, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, then I want to tell you all, आप खड़े हो जाओ, you should stand. आप खड़े हो जाओ। You should stand. आपको मालूम नहीं कि आपके द्वारा कितने लोग प्रभु के यीशु मसीह के पास आने वाले हैं। You don't know how many will come to the Lord when you stand. अगर आप खड़े हो गए तो हम देखते कि जैसे पतरस खड़ा हो गया, 3,000 लोग वहां पे आ गए। We don't know if you stand as Peter stood and 3,000 were added. अगर आप खड़ा होंगे तो प्रभु यीशु भी आपके लिए बहुत से लोग खड़े करेंगे। And if you stand, Jesus Christ will give you many to stand with you. बहुत से लोग प्रभु में आएंगे। Many will come to the Lord. ये केवल ये पेंटिकॉस्ट का पर्व हमको सेलिब्रेट हमको नहीं करना है। We should not only celebrate the feast of Pentecost. आज इस पेंटिकॉस्ट के जिन दिन में आज हम देखते कि पूरे बहुत से कलीसिया में इसके लिए प्रार्थना हो रही है। Today, many are praying on this day of Pentecost. समय निकल गया है 2000 साल में ही। Time has passed away 2000 years प्रार्थना ago. करने का समय निकल गया है 2000 साल में ही। Praying time is over 2000 years ago. पेंटिकॉस्ट के दिन में वो समय खत्म हो गया है कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की। And on the day of Pentecost itself, the time is over praying for the laborers. अभी समय आया है कि एक्शन का। Now is the time of action. इसलिए प्रभु ने मार्टिन लूथर किंग को दिखाया कि उसको बोला कि तू अभी सिर्फ प्रार्थना मत कर, लेकिन तू अभी यहाँ पे खेत में कूद जा। That time Jesus Christ told King Martin Luther, you need not pray, you have to go and work in the fields. आज वही यीशु मसीह तुमको और मुझे कह रहा है कि अभी प्रार्थना करते मत बैठो, अभी उठ जाओ और तुम इस खेती में कूद जाओ। ये हमको कह रहा है। Today the same Jesus Christ is telling us, now you need not kneel and pray, but you have to jump into the fields and start working. अगर इस खेत में अगर नहीं कूदोगे, If you won't jump into the fields today, तो ये खेती बर्बाद हो जाएगी। then the harvest will be rotten. और अगर ये खेती अगर बर्बाद हो जाएगी, If the harvest is rotten, वो प्रभु तुमको और मुझको नहीं छोड़ेगा। the Lord will not leave you and me. हमको नहीं छोड़ेगा वो। He will not leave you and me. आज ये समय है कि आज हमारी जमीन हिलना जरूरी है। It's the time to shake the place. हमारी जमीन हिलना बहुत ही जरूरी है। We have to shake ourselves. हमको हिलना जरूरी है। We need to move ourselves. अगर हम नहीं हिलेंगे, If we won't move, प्रभु वहां पे पत्थरों को खड़ा करेगा। then the Lord will use stones there. बहुत ही जल्दी ये पत्थर खड़े होने वाले हैं। Very soon the stones will be used. बहुत ही जल्दी ये पत्थर खड़े होने वाले हैं। Very soon the stones will be और used. आप लोग देखोगे कि यही पत्थरों के द्वारा प्रभु बहुत ही बड़ा काम करेगा। And through the stones the Lord is going to do mighty things. यहाँ पे मैं ये वचन को यहाँ पे रोक रहा हूँ, I am stopping the word of God here. लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे उत्तेजन करना चाहता हूँ। But I want to encourage one thing today. अगर आप चुप रहोगे, If you will be quiet and silent, वो पत्थरों को खड़ा करने वाला है। Lord will raise the stones. ये पेंतिकॉस्ट का दिन है। Today is the day of Pentecost. इस पेंतिकॉस्ट के दिन में उसने केवल अपने चेलों को हिलाया नहीं, On the day of Pentecost, he not only moved his disciples, लेकिन उसने पृथ्वी के ऊपर जितने भी यहूदी लोग थे उनको सबको हिलाया, यानी पृथ्वी को भी उसने हिलाया। but also he moved all those who were on the earth today, and he shook the ends of the earth. आज वो हिला रहा है। Today he is moving us. हिला रहा है हमको। He is moving us. इस कोरोना महामारी से वो हमको हिला रहा है। From this corona he is moving us. अगर हम नहीं जागेंगे, If we won't wake up, पत्थर वहां पे जाग उठेंगे। then the stones will raise up. लेकिन हमको हमारा जो हिसाब जो है
हमको प्रभु को देना पड़ेगा। But we need to give our account to the Lord of the harvest. हमको तैयार होना है उसके लिए। We need to get prepared and ready for it. इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे Let's close our eyes this moment. और हम हमारे खुद को हम एक सवाल पूछेंगे। Let's ask ourselves a question. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा When Jesus Christ will come और जब वो मुझे पूछेगा and he will ask me, मेरे खेती का तूने क्या किया, what did you do of my harvest? तो उसके लिए मैं क्या जवाब दूंगा? What will the answer will I give? आज ही हम उसके ऊपर सोचेंगे, Let's think on the same question today. क्योंकि हमको हर एक को उसका हिसाब देना है। Because each and every one of us have to give an account of the day. हर एक को हिसाब देना है। We have to give an account of that day. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। Jesus Christ has sacrificed. स्वर्गीय His पिता life ने for us. अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया है। Heavenly Father has given His only begotten Son for us. आज हम उसको क्या दे रहे हैं? What are we giving them today? आज हम उसके बारे में हम सोचेंगे। Let's think about it. अभी हम बंद करेंगे हमारे घर वालों के लिए भी सोचने के लिए। We will stop thinking about our family members हम now. बंद करेंगे खुद के बारे में सोचने के लिए। We will stop thinking of our own selves now. अभी ये वक्त आया है कि हमको यीशु मसीह के बारे में सोचना है। We need to, it's time to think about Jesus Christ today. हमको सोचना है उस पके हुए खेत के बारे में। It's time to think about the harvest today. हमको उसमें कैसे काम करना है उसके बारे में हमको सोचना है। It's time to think how I will work for the harvest today. आइए हम प्रार्थना करेंगे। So come, let's pray.